हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने हमारा मैग्नेटिक चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एंड वी हैव बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टडी कर लिया है इस चैप्टर में। जैसे कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती हैं उसके अराउंड, अगर सर्कुलर फॉर्म में हो तब कैसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके आसपास, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और अगर वो सोलेनॉइड हो तब क्या होता है, राइट, तब किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती है इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं सोलेनॉइड्स का, जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स होती हैं तो उनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। एंड द यूज़ इज़ मेकिंग द परमानेंट और द टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो हम आज स्टडी करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट्स टुडे, द टेम्पररी वन एंड द परमानेंट वन, कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हाउ वी आर मेकिंग दैम, ठीक है। ये हमारा मेन सेक्शन होगा फॉर टुडे। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दैम एंड द थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैम, right? And you all know that we do prepare for the examinations as well as the competitive examination, right? The school one and the competitive one, both the examination we are going to study here, and that is the main thing. You should focus upon this topic just because of that, because you are dealing with both types of things, right? You are getting the knowledge for both types of examination, and that is the must thing. Now see, if you want DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write a code TTB010 over there. You can access all the DPPs and study material by joining this channel for the class 10th, right? And see, this is the beautiful team and the hard working team which is very much doing hard work for you all, so that you are able to achieve all your dreams you have been thinking about and you have decided for yourself. So basically all you need to do is to study with us, stick with us, do the homework, and good to go, right? So the thing that we talk in each class is that if you want a study material, right, basically not just study material, a whole package, or you can say the guidance you want to have about every, or you can say each topic, right? So you can definitely access them through this website. Go on this website www.talkingtextbooks.in, right? Over there you will be getting two type of packages. The number one is the full package, that is, you can say the package will be involving the guidance, the tricks, right, and the study material will be provided to you. You will be getting the lectures, right? You will be getting the homework submission feature where you will be submitting your homework and we will be checking that. And definitely you will be getting the bi-weekly quizzes. You will be attempting the quiz twice a week, and along with the periodic test papers. So periodic test papers क्यों, वो इसलिए कि whenever you go for any examination, you decide for any examination, you should know about the structure, right? You should know the pattern, the structure, the method, किस तरीके से questions आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड उन सभी को पता करने के लिए यू हैव टू फेस द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को इसी तरीके से बनाया गया है कि हम आपको फाइनल पैटर्न से रूबरू करा सके, राइट, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। So a main thing we are going to get that is that if you want to have a proper guidance, right, if you want to access a thing that maybe you are fighting and you are really much as we can say focused towards your studies, then you can definitely go for the full package. But if you want just test series, or you want to just test yourself, you have studied about a lot, and definitely you can go for the test series, right? And for that, if you are serious about buying any of the project of the you can say the things from the talkingtextbooks.in, then you can definitely write a code, and that is CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And even have you ever any query regarding the things कि भाई किस तरीके से ये काम होगा, doubts कैसे solve होंगे, how you are going to get the study material, or how you are going to attempt the bi-weekly quizzes, where you have to go, right? ये सब चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो you can call us, and the number is 919549041111. This is the number you can call us, and you can get all your queries resolved by calling us on this number.
ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करें फटाफट से. सो प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस. रिवीजन बहुत ज़रूरी है, राइट. ये अभी तो हम सिर्फ अपना सेकेंड चैप्टर ही कर रहे हैं, अभी और भी चैप्टर्स हमें करने बाकी हैं. तो आप क्या करेंगे, रिविजन करते चलेंगे. डेली आपको 20 मिनट्स रिविजन करना ही करना है, ठीक है. उसके बाद ही आप अगली चीज़ पढ़ेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द परमानेंट एंड द टेम्पररी मैग्नेट्स. तो देखो, मैग्नेट क्या होती है. मैग्नेट में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो आयरन से बने पीसेस को या फिर मैग्नेट्स को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, राइट. एक ऐसा पीस ऑफ यू कैन से आयरन जो कि अट्रैक्ट करता है, राइट. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं. तो देखो यहाँ पे, अगर कोई पीस ऑफ आयरन, ठीक है, अगर कोई पीस ऑफ आयरन है और उसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है. मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मतलब कि भाई वो क्या कर सकता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है. तो उसका जो ये मैग्नेटिज्म होगा ये कितना ज़्यादा होगा या फिर वो कितनी देर तक स्टोर करके रख सकता है ये प्रॉपर्टी अपने अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसी मटेरियल के स्ट्रक्चर पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट वो किस तरीके से वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, किस तरीके का उसका कंस्टिट्यूएंट है वहाँ पर, ठीक है. जैसे हम लोग बात करें तो स्टील, ठीक है, वो भी आयरन का बना होता है, और सॉफ्ट आयरन, ठीक है, वो भी किसका बना होता है, आयरन का बना होता है. डेफिनेट सी बात है. लेकिन फिर भी स्टील के अंदर इस मैग्नेटिज्म को होल्ड करने की ये जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है. वो ज़्यादा देर तक मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकता है, राइट. एंड जो सॉफ्ट आयरन है वो बहुत ही कम देर तक रिटेन करके रखता है. इसका मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या कर सकता है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करके रखता. कौन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है. तो देखो ये चीज़ हमें कैसे पता चले, ये जो आयरन का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो किस का बना हुआ है, ठीक है. उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर तक अपनी मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है. ऑलराइट, अगर वो ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाता है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके का कंडीशन हो सकता है, स्टील के जैसा, ठीक है. और जो ऐसे आयरन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट, जिन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन्स बोलते हैं, दैट इज़ नॉट रियली मच सॉफ्ट बट इट इज़ सेड अ सॉफ्ट आयरन, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से अपनी इस पावर को लूज कर देता है. मतलब वो ज़्यादा देर तक, सॉफ्ट आयरन ज़्यादा देर तक मैग्नेटिज्म की इस पावर को होल्ड करके नहीं रखता, ठीक है. आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है. बट फिर भी आपको एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि कितनी देर तक जो है कोई भी मटीरियल अगर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे. एंड वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द पीसेज ऑफ आयरन ओनली, राइट, एंड नथिंग एल्स. सो दिस इज द स्टील आयरन, दैट इज द स्टील, राइट, एंड दिस इज द सॉफ्ट आयरन. तो देखो यहाँ पर ये जो स्टील होता है, ठीक है, ये स्टील काफ़ी देर तक अगर हम इसे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दे दें, ठीक है, अगर हम इसे एक मैग्नेट बनाने की कोशिश करें और हम इसे मैग्नेट बनाएं भी, तो क्या होगा, अगर इसे एक बार प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो फिर ये क्या करता है, बहुत टाइम तक इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है. कौन, स्टील होल्ड करके रखता है, ठीक है. तो ये अगर एक मैग्नेट बना तो ये कुछ देर तक, कुछ टाइम तक अपनी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रहेगा और मैग्नेट बने रहेगा, ठीक है. एंड दैट्स वाई, इसी रीजंस की वजह से इसे किस काम में लिया जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है. तो स्टील्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाते हैं. और वहीं पर ये जो सॉफ्ट आयरन है इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी हुआ कि ये जल्दी से जल्दी अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, उसको होल्ड नहीं करके रखता. अगर हम सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बनाने की कोशिश भी करें, उसे मैग्नेटिज्म दे भी, उस पावर को देने की कोशिश भी करें, तो भी वो क्या करेगा, बहुत जल्दी से अपनी मैग्नेटिज्म की पावर को लूज कर देगा, वो उसे होल्ड करके नहीं रखता. एंड इसकी वजह से, क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये होल्ड करके नहीं रखता, इसी वजह से हमने इसे कौन से मैग्नेट बनाने के लिए चूज़ किया है, टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए, ठीक है, एज लॉन्ग एज वी वांट, ठीक है. तो हमने जो सॉफ्ट आयरन है उसे हमने किस में यूज़ किया है, टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज़ किया है. बिकॉज टेम्परेरी मैग्नेट्स में क्या होता है,
एंड वी आर गोइंग टू मेक दैम मैग्नेट्स बाय यूजिंग दी सोलेनॉइड, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को यूज करके वी आर गोइंग टू मेक दैम दी मैग्नेट। अब देखो ध्यान से, ये जो टेम्परेरी मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब जो कि परमानेंट नहीं है, डेफिनेट सी बात है, राइट। साथ ही साथ टेम्परेरी का मतलब ये हुआ कि भाई थोड़ी देर के लिए, जब जब हमने चाहा तब तब के लिए मैग्नेट बना दिया, और जब हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसे मैग्नेट नहीं बनाया, ठीक है। कैसे? इसे हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन को, वो जो सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हम लोगों ने स्टडी किया था, उसके अंदर हम उसे रख देंगे, ठीक है। फिर हम करंट ऑन करेंगे। जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा। ड्यू टू दैट जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो सब क्रिएट हो जाएंगी सोलेनॉइड में, राइट, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। और सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ जो वो सॉफ्ट आयरन का पीस है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो एज सून एज हमने करंट ऑन किया और करंट फ्लो होने लगा, तब वो बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है। और जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, करंट स्टॉप हो गया, तो उसने अपनी मैग्नेटिज्म की पावर लूज कर दी, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म को होल्ड करके नहीं रखता। जब जब उसके सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा तब तब वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बनेगा, और जब जब नहीं करंट फ्लो होगा तब तब वो सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम उसे टेम्परेरी मैग्नेट की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई टेम्परेरीली हमें जो मैग्नेट चाहिए वो हम इसको यूज करके बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म को काफी देर तक होल्ड करके रखता है। तो मतलब एक बार अगर तुमने इसे मैग्नेटाइज कर दिया तो ये काफी देर तक अपनी ये जो प्रॉपर्टी है उसे होल्ड करके रखेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सॉफ्ट आयरन के केस में नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या किया है, टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो तुम इसकी स्पेलिंग देखो, इलेक्ट्रो, ठीक है, और मैग्नेट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेट, वी कैन से दैट, डेफिनेट सी बात है। तो मतलब जब जब इलेक्ट्रिक करंट वहां होगा तब तब मैग्नेट होगा, जब जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तब तब मैग्नेट भी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज मेकिंग अ मैग्नेट। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम क्या कर रहे हैं, हम सोलेनॉइड के अंदर, जैसा कि आपने देखा होगा कि सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से सोलेनॉइड है ना, इनके ऊपर टाइटली रैप जो हमने कॉपर किया हुआ है, राइट। तो हम लोगों ने जो सर्किट पढ़ा था दैट सोलेनॉइड, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये पता किया था कि सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके बाहर बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा होता है, बार मैग्नेट की तरह फील होता है, राइट, जो फील्ड्स हैं वहाँ पे। अब देखो तुम ध्यान से सुनो कि उसके अंदर का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमने हेल्प ली, ठीक है, और उसको यूज किया किसी और सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। अब देखो, a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. What you have to do is, आपको क्या करना है, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को रख देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, डेफिनेट सी बात है, फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट के फ्लो होने की वजह से सोलेनॉइड के अंदर और बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, वो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब उसे क्या करेगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दे देगा, ठीक है। मैग्नेटाइज का मतलब यही होता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दे देना। नाउ दैट पीस ऑफ आयरन कैन अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कि ये जब हमने इसे ऑन किया तो ये जो आयरन का नेल है दैट बिकम्स अ मैग्नेट, बट जैसे ही हम इसे ऑफ करेंगे ये इन पीसेस को, ये पेपर क्लिप्स को छोड़ देगा, तो मतलब इसका मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज हो गई। जैसे ही ऑन किया स्विच, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई, जैसे ही ऑफ किया स्विच, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चले गए। सो इट इज लाइक दैट कि ये कितना ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। इफ यू आर गिविंग द करंट, मैग्नेट इज देयर, इफ यू आर नॉट गिविंग द करंट, मैग्नेट इज नॉट देयर, राइट। ये चीजें हमें देखनी है, और ये जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखने के लिए, है ना, हम लोग मेन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि हमने देखे हैं कई सारे इफेक्ट होते हैं करंट के, राइट। हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं,
एक और केमिकल इफेक्ट होता है जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, और जो थर्ड इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड दैट इज यूज्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब देखो जब हमने स्विच ऑन इसे किया है तो क्या हुआ है, पेपर क्लिप्स अटैच हो जाती हैं, है ना, अट्रैक्ट हो जाती है उससे, बिकॉज अब ये आयरन मैग्नेट बन जाता है। तो इसे अब हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग द करंट इट इज अ मैग्नेट नाउ। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़नी है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक अ सोलेनॉइड फर्स्ट। हमें एक टाइटली रैप्ड सोलेनॉइड चाहिए होता है, जो कि हम लोग अपने पुराने प्रीवियस सर्किट्स में हम लोगों ने देखे थे। वैसे ही हमें क्या चाहिए होता है, सोलेनॉइड चाहिए होती है। उसके अलावा एक हमें क्या चाहिए होता है, सेल या फिर बैटरी। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, की चाहिए होता है। ठीक है, एंड अ सॉफ्ट आयरन टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है सिवाय ये पूरा एक रेक्टेंगल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है, दैट इज दी सॉफ्ट आयरन की कोर। ठीक है, आपने क्या किया, एक स्लैब मान लो, सॉफ्ट आयरन का एक स्लैब मान लो। ये जो स्लैब होगा आप क्या करोगे, सोलेनॉइड के अंदर रख दोगे। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर रख दोगे, बिकॉज यू नो दैट सोलेनॉइड इज अ हॉलो थिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर इस सॉफ्ट आयरन की कोर को रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्विच, ये जो की है हमारी, उसको ऑन करेंगे। जैसे ही की ऑन किया, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा। जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा तो क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, राइट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वैसे ही क्या होने लग जाएगा, जो हमारी सोलेनॉइड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, एंड ड्यू टू दैट ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करेगा, उसका जो मैग्नेटिज्म उसे मिल रहा है, क्योंकि उसके मैग्नेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे इसे एक मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, राइट। इसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसकी वजह से ये क्या करेगा, आयरन के पीसेस को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है अब। ठीक है, जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही आप यहाँ से स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट नहीं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था सोलेनॉइड की वजह से, वो भी नहीं। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, करंट भी नहीं है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जल्दी से छोड़ देगा। जैसे ही स्विच ऑफ वैसे ही उसने अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी छोड़ दी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उसके अंदर ये जो मैग्नेटिज्म की पावर है, होल्ड अप करने वाली, मैग्नेटिज्म को होल्ड अप करना, रिटेन करने की जो पावर है वो न के बराबर होती है। बहुत ही कम टाइम में वो अपनी जो पावर है वो लूज कर देता है। सो जब जब करंट ऑन रहेगा तब तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी, और जब जब करंट ऑफ रहेगा तब तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी। ठीक है, यही इसका मेन यू कैन से इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब देखो हम आपको ये पता चल गया है दैट यू आर यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। अब की बार अगर इसके अंदर आप स्टील रख दें, ठीक है, अगर आप इसके अंदर स्टील रख दें और थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, करंट ऑन करें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप करंट ऑफ कर दें, तो ये जो सॉफ्ट आयरन की जगह जो आपने स्टील रखी होगी, वो पीस ऑफ स्टील वुड बिहेव एज अ मैग्नेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत देर तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैवंट यूज द स्टील, है ना। इसी वजह से हमने स्टील यूज नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो कई देर तक रहती है, वो तो कई देर तक अट्रैक्ट करके रखेगा मैग्नेटिक पीसेस को, राइट। लेकिन सॉफ्ट आयरन तुरंत छोड़ देगा, एंड वी आर यूजिंग दैट। अब देखो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन वर्ड वन सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन को ही क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया जाता है अपनी पूरी मैग्नेटिज्म की पावर को लूज कर देता है। नाउ इट कैन नॉट अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटिक पीसेस। ठीक है, तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है, आप इसे नोट करें, दिस इज टोटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डेफिनेट सी बात है, ज़्यादा बड़ी तुम सॉफ्ट आयरन कोर लोगे, ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे, तो तुम उसको बड़ी जगह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ में जब कुछ भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में बड़े बड़े आयरन के पीसेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना होता है, तो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर गुड थिंग टू यूज़,
है ना। उसके अलावा भी कई बार क्या करना होता है, जो यू कैन से इलेक्ट्रिक पीसेस, आयरन पीसेस को एक्चुअली क्या किया करना होता है, अलग करना होता है किसी एक हीप ऑफ गार्बेज में इसमें, और यू कैन से अलग जगह पे। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा भी उसमें जो है हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, बिकॉज कभी कभी अगर जैसे आंखों में कोई आयरन पार्टिकल चला गया, बहुत छोटा आयरन पार्टिकल चला गया, तो उसके लिए छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होती है, राइट। एंड दूसरी अदर जगहों पे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होती है। तो यू आर यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, उसका शेप कैसे, उसका साइज कैसे है, डिपेंडिंग ऑन दी शेप एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट यू वांट टू मेक, राइट। अगर आपको बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, यू विल यूजिंग द बिग आयरन सॉफ्ट आयरन कोर। इफ यू वांट अ स्मॉल वन, देन यू कैन डेफिनेटली यूजिंग द स्मॉल वन, राइट। तो आप फटाफट से इसे नोट करो, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हम लोग देखते हैं जो उसके बाकी के केसेस जो आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द वर्किंग इट ऑफ। वैसे तो मैं आपको पूरी वर्किंग बता चुकी हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। तो यहाँ पे मेन वर्किंग हमें किसकी देखनी है भाई, वो ये चीज़ देखनी है दैट जैसे ही हमने की ऑन करी, राइट, तो हमें क्या होगा, यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ वन एंड दिस इज द नॉर्थ वन, तो इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। ये जो सोलेनोइड के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, दैट इज टोटली सिमिलर टू दी बार मैग्नेट, राइट। ये बात तो हमें पहले से पता होती है, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट देयर व्हेनेवर स्विच इज ऑन, ठीक है। जब जब स्विच ऑन रहेगा, करंट फ्लो रहेगा, तब तब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। लेकिन जैसे ही करंट ऑफ होगा, जैसे हम स्विच ऑफ यहाँ से कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो आपको मैग्नेट दिख रही है, वो जो मैग्नेट होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल यू कैन से कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, राइट। वो सिर्फ जस्ट एक पीस ऑफ आयरन रह जाएगा जब हम स्विच ऑफ कर देंगे। और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, देयर वुड बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन को भी अंदर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बिल्कुल मैग्नेटाइज हो जाएगा बाय दी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने उसको उसके अंदर रखा हुआ है, राइट। एंड दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे लिख भी सकते हैं और आप इसे बिल्कुल देख भी सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जब कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो यू शुड बी मच डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, राइट। तो बेसिकली आपको जब क्वेश्चंस करना होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू शुड बी राइटिंग इट वेरी इनऑर्गेनाइज थिंग, ठीक है। आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा एंड दैट विल बी सेइंग, जैसे ही आप इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे कि जब हम इसे ऑन करेंगे तो current will start flowing inside the solenoid and a uniform magnetic field will be created inside the solenoid which will magnetize the soft iron core and the soft iron core will behave as a magnet. जैसे as soon as the switch is off, current will stop flowing and the magnetic field inside the solenoid will disappear, and due to that the property of attracting the magnetic substance by the soft iron core will be removed. तो ठीक है, तो हम इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसे लिख सकते हैं वर्किंग को, ऑलराइट। तो इसे जो है आप फटाफट से लिखें। एंड द मेन रीज़न इज हम सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टॉप हुआ, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट दी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये चीज़ हमें जाननी थी, ज़रूरी थी। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। हम लोग जल्दी से नेक्स्ट की बातें करते हैं, एप्लीकेशंस की बातें करते हैं। तो वेयर डू वी यूज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसके अलावा भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, देखो इतने बड़े बड़े आयरन के पीसेस हैं एंड दीज आर पिकिंग अप बाय द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ठीक है, ये हमने, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो इसको हम नॉर्मली ह्यूमन से तो नहीं उठा सकते, वी यूज़ क्रेन टू डू दैट, राइट। तो बड़े बड़े आयरन के पीसेस को अगर हमें उठाना है या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, शिफ्ट करना है, सो वी ऑलवेज यूज अ बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू डू सो, right? So you can definitely say that in factories very strong electromagnets are used with cranes for lifting very heavy iron ingots and steel scraps from one place to the another. Basically that is the big thing, right? We are talking about the big thing because अगर हमें बड़े बड़े pieces चाहिए होंगे तो हमें एक strong electromagnet चाहिए होंगे, because उस वक्त क्योंकि बड़े पीसेस होंगे तो वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, हो सकता है गलती से गिर जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है, राइट। इसलिए इस नुकसान को बचाने के लिए वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हम देखेंगे आगे जाके कि हम किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग, हॉस्पिटल्स में दे आर यूज फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। वैसे तो अगर तुम्हारे कहीं भी स्किन में चला जाता है, अगर छोटा सा आयरन के पीस अगर चला गया है, वहीं स्टिक हो गया है, वहीं रुक गया है, ठीक है, इनसाइड द स्किन चला जाता है, सो ऑलवेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट, लेकिन वो हॉस्पिटल्स में यूज होगा, डेफिनेट सी बात है। सो दे प्रिपेयर द स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर द स्मॉल थिंग्स यू नीड टू डू, राइट। अभी जैसे आईज में से अगर हमें स्प्लिंटर्स निकालने होंगे तो वी विल बी यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बट अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। तो दैट इज द थिंग कि शेप और उसका जो साइज है दैट डिपेंड्स कि हम किस काम के लिए उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा घर और ऑफिसेज में यू कैन सी इलेक्ट्रिक बेल्स जो होती हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, एज यू कैन सी हियर दिस इज द आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इनसाइड दीज कॉपर वायर्स, ठीक है, इनसाइड दीज कॉपर वायर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होती है वो होती है, आयरन कोर होती है। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द गोंग बिग वन, दिस इज द स्मॉल हैमर, और ये जो हैमर होता है ना ये यहाँ से अट्रैक्ट हो जाता है, लोहे का बना होता है, राइट। तो डेफिनेट सी बात है। अब देखो ये जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, इन दोनों के अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, एंड जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा वैसे क्या होगा, दे विल बिकम अ मैग्नेट, ठीक है। इसके अंदर का जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है दैट विल बिकम अ मैग्नेट, एंड ड्यू टू दैट वो क्या करेगा, ऊपर वाले जो आयरन पीस होगा उसको स्टिक कर लेगा, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला गोंग, ये वाला जो हैमर है वो गोंग से टकराएगा, राइट। जैसे ही ये ऊपर से हटे तो देयर इज अ यू कैन से अ स्ट्रैप ऑफ आयरन, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हुई पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, राइट। एंड ड्यू टू दैट ब्रेकनेस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश, राइट। नाउ कोई अट्रैक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से वापस ये गोंग ऊपर चला जाएगा, एंड जैसे ही ये गोंग ऊपर गया वापस तो क्या होगा, कनेक्शन फिर से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस बन जाएगी, देयर वुड बी अ फ्लो ऑफ करंट, वापस इससे कनेक्ट हो जाएगा। हैव यू एवर बीन ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसे ना तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, और जो गोंग, ये जो हैमर होता है जो कि गोंग से ट्रैक करता है, उससे जल्दी जल्दी ऐसे करता है, स्ट्राइक करता है, राइट। तो बेसिकली आपको वहाँ पे ये देखना है कि जल्दी जल्दी किस तरीके से कर पा रहे हैं, जस्ट बाय यूजिंग द ट्रिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आप लोग देखिएगा, उसकी वर्किंग पढ़िएगा, एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आउट, राइट। अब देखो घर में, ऑफिस में, हाउसेज में वी डेफिनेटली यूज द इलेक्ट्रिक बेल्स, और हम लोग दूसरी तरह के लिए भी यूज़ कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ कर देते हैं, राइट। एंड जैसे अगर हमें बहुत बड़े मडी एरिया में से, और यू कैन से एक बहुत बड़े गार्बेज में से, इफ़ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द आयरन पीसेस वी कैन यूज़ अ क्रेन यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे हम क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रेन की हेल्प से पूरे गार्बेज एरिया के ऊपर हम लोग उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसको घुमा सकते हैं, ऊपर ऊपर घुमा लेंगे तो क्या होगा, जितने भी आयरन के पीसेस होंगे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद हम दूसरी जगह ले जाके उसको ड्रॉप कर देंगे, आयरन जैसे करंट हमने स्टॉप किया वैसे वो ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो दैट, ठीक है, तुम लोग को क्या करना चाहिए, खुद से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम छोटी छोटी चीज़ें तो खुद से कर सको ना। जैसे लेट्स से यू वांट टू कलेक्ट आयरन नेल्स जो कि बिखर गई हैं, सो यूज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट टू कलेक्ट देम, राइट, यू कैन डेफिनेटली यूज दैम। जब तुम्हें पता है तो तुम डेफिनेटली कर ही सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स। मैंने बताया था तुम्हें, वी विल बी डिस्कसिंग किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और किस तरीके से उसको वीक बना सकते हैं, इट्स अपॉन अस, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द नंबर वन फैक्टर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं the more
the coils, or you can say the turns in the coil, the more the strength of electromagnet, the more the strength of electromagnet. ठीक है. सेकेंड फैक्टर क्या है? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अब देखो इस पूरे सर्किट में या फिर सोलेनॉइड में से जितना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, सो वी हैव स्टडीड ना कि अगर एक टर्न के अंदर जितना करंट फ्लो होता है और वहां पे अगर ट्वाइस टर्न हो जाए, थ्राइस टर्न हो जाए, 4 टाइम्स टर्न हो जाए, तो क्या होता है? करंट क्या होता है? एड अप हो जाता है एंड दैट कैन इंक्रीज द करंट, राइट. अगर इंक्रीज हम कर देते हैं करंट को तो क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है. सो यहाँ पे द मोर द करंट, वी आर गोइंग टू अगेन राइट दैट द मोर द करंट, the more the strength of electromagnet. ठीक है, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब लेट्स से 2 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर भेजो, 5 एम्पियर का करंट भेजोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी. और अगर तुम 5 की जगह 10 एम्पियर भेजोगे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो यू शुड डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट इनसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है, तो ये आपको इंक्रीज करना है. एक और फैक्टर है, ठीक है, जो डिपेंड अच्छा है, दैट शुड बी कंसिडरेबल एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द एयर गैप. कैसे एयर गैप की बात कर रहे हैं? जैसे आप देखो ये है एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये जो एक बार मैग्नेट है, इन दोनों पोल्स के बीच में देयर इज सो मच बिग एयर गैप बहुत ज़्यादा है. बट अगर हम एक हॉर्स शू शेप का मैग्नेट देखते हैं तो आप देखो ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो इन दोनों के बीच में जो एयर है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेम स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. ठीक है, अगर हम सेम स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट्स की बात करें तो हॉर्स शू मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी रेदर देन स्ट्रॉन्ग अगर हम बार मैग्नेट और उसको कंपेयर करें तो, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हॉर्सशू मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगी, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. और अगर एक बार मैग्नेट को यूज़ करते हैं तो लिटिल बिट ऑफ वो वीक बनाएगी इन कंपेयर टू दी यू कैन से हॉर्सशू. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जो बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग. सो नोट देम आउट. ठीक है, इन सभी को तुम नोट करो एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड टू द थिंग कि हम एक सॉफ्ट आयरन और स्टील आयरन को जब हम देखते हैं, स्टील कोर सॉरी, soft iron core we are talking about. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है वो फैक्टर्स जिनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. 2 फैक्टर्स मेन है सबसे, वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ये कैन बी डन फिजिकली, ये आप फिजिकली कर सकते हो. नंबर ऑफ टर्न्स आप खुद से बढ़ा सकते हो. ठीक है. सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ये भी आप कर सकते हो. ज़्यादा नंबर ऑफ बैटरीज यूज करो, यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज द करंट, राइट. एयर गैप के लिए यू कैन डेफिनेटली प्रेफर दी हॉर्सशू मैग्नेट इंस्टीड ऑफ अ बार मैग्नेट, राइट. चलो अब हम देखते हैं आगे, और दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो दिस नोट. देखो कैसे नोट हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ. जो सॉफ्ट आयरन होता है, वो सॉफ्ट आयरन को अगर हमें मैग्नेट बनाना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से करते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से भी सॉफ्ट आयरन को अगर आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड में भी वो एज अ मैग्नेट मिल जाएगा,
मतलब अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बना सकते हो, वो इजीली बन जाएगा। लेकिन जो स्टील होता है, अगर आप उसे वीक मैग्नेटिक फील्ड में बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक जल्दी से मैग्नेट नहीं बनने वाला। मतलब जो स्टील होता है उसे एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है टू मैग्नेटाइज है, ठीक है। मतलब उसको अगर हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं स्टील को, तो फिर उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, ठीक है। एंड दैट इज द थिंग आई वांट टू टेल यू। ऑल्सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसे मैग्नेट बनाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन स्टील की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो एक वी कैन से वो अपनी मैग्नेटिज्म को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है। एंड रीज़न ये कि भाई उसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, सो दैट इट कैन रिटेन इट्स पावर, ठीक है। पहले वो उतनी पावर गेन करेगा एंड देन ही विल और शी विल डेफिनेटली रिटेन इट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि स्टील बहुत देर तक अपना मैग्नेटिज्म की पावर को होल्ड करके रखता है, रिटेन करके रखता है, ठीक है। दूसरी बात, स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए, स्टील को मैग्नेट बनाने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, सॉफ्ट आयरन की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, बहुत जल्दी से अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, ठीक है, उसको रिटेन नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कि सॉफ्ट आयरन जो होता है बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो उसको कम एनर्जी चाहिए होती है टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी थी। इट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट और अ साइड फैक्टर यू कैन से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। वैसे तो तुम्हें डिफरेंसेस पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वापस से डिफरेंसेस बता देती हूँ। देखो, परमानेंट मैग्नेट को हम लोग बोल सकते हैं द मैग्नेट मेड बाय स्टील, ठीक है। तो वी कैन से द बार मैग्नेट, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट होती है जो कि स्टील की हेल्प से बनाई जा सकती है और सोलेनॉइड की हेल्प से बनाई जा सकती है। स्टील की यू कैन से उसके अलॉयज से बनाई जा सकती है। परमानेंट मैग्नेट उसे हम बोलेंगे बिकॉज इट कैन रिटेन इट्स पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वहीं हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की या फिर सॉफ्ट आयरन कोर से बने हुए मैग्नेट की, ठीक है, वहां पे हम इन दोनों को डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द डिफरेंसेस बिटवीन दैम। पहली बात, बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, दैट इज द परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उसके पास कई देर तक उसका जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म का वो रहेगा। इंस्टेड अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखें, टेम्परेरी मैग्नेट भी लिख देते हैं तो भी ये डिफरेंसेस काम आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, क्योंकि जब जब आपको चाहिए वो तब तब आपको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करेगी। यू स्विच ऑन, करंट फ्लो होगा, यू विल गेट अ मैग्नेट। यू स्विच ऑफ, करंट फ्लो नहीं होगा, यू विल नॉट गेट अ मैग्नेट, ठीक है। तो बेसिकली ये हुई एक टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। सो नंबर वन डिफरेंस, बार मैग्नेट जो होती है वो एक परमानेंट मैग्नेट होती है, वहीं पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, ठीक है। एज सून एज यू स्विच ऑन द करंट यू गेट अ मैग्नेट, and as soon as you switch off the current you will not get a magnet. सेकेंड उनका जो डिफरेंस होता है वो, एक परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देती है, दैट मीन्स वो बहुत, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही वीक होता है, और यू कैन से कि वो ज़्यादा पावर तक होल्ड करके नहीं रखती है। मतलब एज यू कैन सी कि ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ज़्यादा फोर्स है वो अप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। वीक रहता है उसका ट्रैक्शन भी और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी। वहीं पर अगर हम बात करें टेम्परेरी की, तो आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, उसको वीक भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अस, ठीक है। हम नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर देंगे, हम करंट ज़्यादा फ्लो करवा देंगे तो हमें मिल जाएगी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं, अगर हम एज यू कैन सी कि भाई हमने करंट कम करवा दिया तो वी कैन गेट अ वीक मैग्नेट। तो इट डिपेंडिंग ऑन अस। परमानेंट मैग्नेट तो भाई हो गई परमानेंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो अट्रैक्शन है वो परमानेंट है, वो चेंज ही नहीं हो सकता, ऊपर से वो वीक भी है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अस, हमें जैसा चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन गेट अ वीक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन अस, ठीक है। थर्ड डिफरेंस जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड।
कैन नॉट बी चेंज बिकॉज दैट्स द परमानेंट, राइट. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से वी कैन डू दैट, वी ऑल नो, बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन डू दैट. ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट. फोर्थ डिफरेंस, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड. अब तुम देखो ध्यान से कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो पूरी तरीके से परमानेंट मैग्नेट है. कैसे? एक तो पहली बात परमानेंट है, ठीक है. दूसरी बात नॉर्थ साउथ फिक्स हो गए, परमानेंट हो गए. एक तरफ नॉर्थ है तो उसी तरफ जिंदगी भर नॉर्थ ही रहेगा और दूसरी तरफ जिंदगी भर साउथ ही रहेगा. ठीक है, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, परमानेंट हो गई है वो. ऊपर से उसका जो फील्ड का स्ट्रेंथ है परमानेंट हो गया. ठीक है, तो मतलब सब कुछ परमानेंट मैग्नेट का परमानेंट ही होता है. वहीं पे टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट का सब कुछ टेम्पररी होता है. इट कैन बी चेंज, इट कैन बी डन. कैसे आप उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो? कैसे आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना सकते हो? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सिंपली. ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, बैटरी को उल्टा करके अटैच कर दो, यू विल गेट अ डिफरेंट पोल्स. ठीक है, तो मैं जो पहले नॉर्थ साउथ होते थे वो पलट जाएंगे एंड इट विल बिकम साउथ नॉर्थ. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, परमानेंट मैग्नेट राइट. तो परमानेंट मैग्नेट का आप क्या करोगे, आप पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते. यू कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पररी मैग्नेट, सोलेनॉइड से बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, साथ ही साथ आप इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते परमानेंट मैग्नेट का, लेकिन आप टेम्पररी का स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो. ठीक है, सो कितना बढ़िया है. मतलब तुम्हें तुम्हारी अकॉर्डिंग तुम्हें यू आर गेटिंग अ गुड थिंग. मतलब तुम उसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, तुम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको मैग्नेट बना सकते हो. ठीक है, तुम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है उसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, उसका पोल्स चेंज कर सकते हो. दिस इज फॉर यू ओनली, राइट. तो मतलब इसका तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विल. जैसी मैग्नेट तुम्हें चाहिए यू कैन मेक लाइक दैट मैग्नेट ओनली. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. सो द थिंग इज कि जो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उन मैग्नेट को बनाने के लिए वी यूज सम अलॉयज. ठीक है, उनको हम मतलब सिंपली स्टील से नहीं बना सकते, सिंपली आयरन से नहीं बना सकते. वी ऑलवेज मिक्स सम थिंग्स टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट. जैसे आप देखो उसको जैसे कार्बन और स्टील को जो है मिलाकर उनका अलॉय बनाकर वी कैन मेक दैट अ परमानेंट मैग्नेट. क्रोमियम स्टील को मिलाकर हम कर सकते हैं, कोबाल्ट स्टील को मिलाकर बना सकते हैं. लुक एट दैट, स्टील सब में कॉमन है ना. टंगस्टन स्टील को बना सकते हैं. निपरमैग और एल्निको आर दी अलॉयज एंड यू शुड रिमेंबर देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि भाई जो निपरमैग होता है वो किससे बना होता है. तो मैं बताती हूँ, देखो निपरमैग अलॉय होता है किसका, आयरन का, निकल का, एल्यूमिनियम का, टाइटेनियम का. ठीक है, इन चारों को मिलाकर वी मेड अलॉय नोन एज निपर. ठीक है, दैट इज निकल परमानेंट मैग्नेट. तो निपरमैग बन गया वो, राइट. सेकेंड थिंग इज एल्निको. एल्निको में क्या बोलेंगे हम, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. इन तीनों को मिला के वी मेड अलॉय एंड दैट इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, अब देखो अकेले स्टील को अगर हम मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा. लेकिन अगर हम स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट चाहते हैं जो कि बहुत टाइम तक अपना जो प्रॉपर्टी है वो उसको होल्ड करके रखे, तो हम क्या करते हैं, एलॉयज को यूज़ करते हैं, राइट. एंड डेफिनेटली बात करते हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी स्टील से काम नहीं चलता. वी ऑलवेज मेड एलॉयज, राइट. एंड यू कैन सी हियर द मैग्नेट इनसाइड द स्पीकर. देखो यहाँ पे होता है मैग्नेट, ठीक है, स्पीकर के अंदर. सो देखो ध्यान से कि कितना जो है चीज़ों में हम ये मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करते हैं. देखो जैसे हम माइक्रोफोन्स में यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में यूज़ करते हैं, एमीटर्स में यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर्स में, स्पीडोमीटर्स में, और भी न जाने कितनी सारी डिवाइसेस है. तो परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ एक ज़रूरी चीज़ है, राइट. अगर हमें चाहिए तो डेफिनेटली बात है वी हैव टू मेक द परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका यूज़ भी है तो हम उनको भी चाहते हैं. और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी यूज़ द अलॉयज जिनके अंदर स्टील भी मिक्स होता है एंड अदर मेटल्स टू भी मिक्स होते हैं, और वी कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग, यू कैन से अ मटीरियल टू मेक दैट अ परमानेंट मैग्नेट, है ना. तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी थी. अब देखो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई तुम मैग्नेट बना सकते हो, लेकिन उसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को छीन भी सकते हो. कैसे तुम उस प्रॉपर्टी को छीन सकते हो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से? पहली चीज सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन. सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, देखो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी उसको हटा देना. ठीक है,
जैसे हम लोग का होता है ना डिहाइड्रेशन, तो मतलब पानी का हट जाना, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन, है ना, पानी की कमी हो जाना। तो ऐसे ही हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म की वो जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसे हटा देना, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब अगर आप किसी मैग्नेट को बिना मैग्नेटिक कीपर्स के छोड़ दो, ऐसे ही पड़ी हुई छोड़ दो उसको, राइट, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर्टी को, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को लूज करते जाएगी, वो वीक बनते जाएगी। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। हमने कुछ नहीं किया, वो बस पड़ी हुई है और जो है उसका जो भी मैग्नेटिज्म की उसका प्रॉपर्टी है वो चला गया, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देख सकते हो, ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट और बाय रफ हैंडलिंग, ठीक है। आप उसे बहुत ज़्यादा हाइट से उसको फेंक दो तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो सकती है, उसका मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जा सकता है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सेव योर मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट, दैट यू कैन डेफिनेटली नॉट थ्रो देम थ्रू दी हाइट। हीटिंग और हैमरिंग द मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को हैमर कर रहे हो, उसको हीट अप करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू आर चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास मैग्नेट है एंड यू वांट टू मेक दैट, मतलब वो जो डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो आप करना चाहते हो, बट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक, कैसे कर सकते हो, लाइक दिस। क्या करोगे, ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के अंदर परमानेंट मैग्नेट को रख दो, ठीक है, और एक एसी सोर्स को ले आओ। एसी सोर्स मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, मतलब जिसमें करंट क्या करता है, आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल करंट डायरेक्शन चेंज कर लेता है खुद ही, ठीक है, खुद ही चेंज कर लेता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इफ यू डू दैट लाइक दिस, यू कैन डेफिनेटली गेट अ डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस फॉर अ परमानेंट मैग्नेट। तो आपको वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी जो था वो चला जाएगा। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो कि आपको ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना है, और तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें अपने मैग्नेट को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें अपने तुम्हारे मैग्नेट का प्रॉपर्टी हटा देना है भाई, कि वो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी हटा दे, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैम, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ मैग्नेटिज्म। डू यू ऑल नो दैट कि हमारे अंदर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो हमारे ब्रेन में और हमारे हार्ट में, ठीक है, क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि भाई हर एक जगह जो भी हमारे इम्पल्सेस ब्रेन तक जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो दीज आर जस्ट बाय द इलेक्ट्रिक, राइट, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं। इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू वो हम तक पहुँचते हैं, हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं। लाइक जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्स क्या होता है हम लोग का कि हम अपना हाथ पीछे खींचे, राइट। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप छूते हैं वैसे ही वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं कि भाई गर्म चीज़ है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ब्रेन बोलता है दूर हटाओ हाथ, फिर वापस से वो सिग्नल्स नीचे आते हैं, तब जाके दूर हटता है। बट ये प्रोसेस भी कितनी जल्दी हो जाती है, लाइक लाइटनिंग फास्ट हो जाती है ना। देखो तो तुम लोगों ने कभी MRI का नाम सुना है, हाँ, नहीं सुना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो जब कभी भी हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट में, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड वो तो सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते रहते हैं, एंड दैट्स वाई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियंथ टाइम होता है, सोचो कितना छोटा होता है, ठीक है, और हमें तो पता ही नहीं चलता। और उसी की वजह से MRI इज पॉसिबल, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके के जो है MRIs मिलते हैं। MRI का मतलब होता है, जिसका डेफिनेशन देखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, ठीक है। यू गेट दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस व्हेनेवर बिकॉज ऑफ जस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करवाते हैं, एक बड़े से एक सर्कुलर ट्यूब होता है, एंड यू आर गोइंग इनटू दैट ट्यूब, फिर तुम्हारा चारों तरफ से जो है MRI किया जाता है, एंड यू गेट सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज हेल्पिंग यू टू गेट दिस MRI, एंड दिस इज हेल्पिंग अस इन द मैग्नेटिक फील्ड। और यू कैन से कि हमारी बॉडी में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करने में, उनको पहचान करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। सो मतलब जो हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस, राइट, बाय वी कैन डेफिनेटली गेट दैट। अब तुम देखो कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में। हम अपने कितने सारे काम आसान कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इट्स सो गुड। आपको नहीं लगता? हाँ, तो देखो दैट वाज इट, राइट। एंड हमने जो आज पढ़ा है दैट इज द परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, उसका सब कुछ आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्स
ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम ये बातें पढ़ेंगे एंड वी विल बी सीइंग सम अदर फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द फोर्स एंड ऑल सम अदर रूल्स टू, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ी। तो उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। So see you in the next lecture. So do not forget to like, subscribe and share and click on the bell icon. Thank you so much.